نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمن بالخير والمستعين یا فتاح یا فتاح یا فتاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو قرآن بیسک گرامر کورس بائی بیچ 1 آپ سب کو شامل ہے. لیکچر نمبر 38 ہے. ہمارا آج کا ٹاپک ہے فعل مضارع میں تاکید. عربی گرامر کے سفر کے آغاز میں جب ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا تو ہم نے جملہ اسمیہ میں بھی تاکید پیدا کی تھی. جملہ اسمیہ میں تاکید لانے کے لیے ہم نے انا حرف تاکید کا استعمال کیا تھا. انا کے آنے سے انا نے اپنی جو ہے اس میں چینجز لے کر آیا جملہ اسمیہ میں کہ اس نے مبتدا کو اپنا اسم اور خبر کو اپنی خبر میں لایا. گرامیٹیکل چینج کیا وہ لے کر آیا؟ اس نے مبتدا کو منصوب کر دیا. اس کے بعد انا کے ساتھ مزید تاکید لے کر آنے کے لیے خبر پر لام تاکید یا لام مظاہرہ لے کر آیا. پھر ہم نے فعل ماضی میں وہی تاکید کا اسلوب پیدا کیا تھا. فعل ماضی میں ہم قد اور لقد سے تاکید لے کر آئے تھے. اب ہمارا ٹاپک ہے فعل مضارع. جملہ فعلیہ سے آپ اچھی طرح سے واقف ہے کہ جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہونے والے جملے کو کہتے ہیں اور جملہ فعلیہ فعل اور فاعل کے کمبینیشن سے بنتا ہے. فاعل اعرابی حالت مرفوع ہوتی ہے. اس کے علاوہ جملہ فعلیہ میں حالت نصب میں آنے والا اسم مفعول کہلاتا ہے. تو یہ ساری ڈیٹیلز آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. آج ہم اپنا ٹاپک شروع کریں گے فعل مضارع میں تاکید. فعل مضارع میں تاکید پیدا کرنے کے لیے کبھی کبھی اس میں قد کا استعمال کیا جاتا ہے. ویسے تو ہم نے فعل ماضی میں قد کے ذریعے اور لقد کے ذریعے تاکید پیدا کی تھی، لیکن فعل مضارع میں بھی کبھی کبھی قد کا استعمال کیا جاتا ہے. قد یعنی تقلیل، کسی کام کو کم کرنا. فعل مضارع میں تاکید کے لیے کبھی کبھی قد آتا ہے. فعل مضارع میں کوئی اعرابی تبدیلی نہیں ہے. قد کے آنے سے فعل مضارع میں کوئی گرامیٹیکل چینج نہیں آتا. قد تعلمون، تعلمون فعل مضارع، انتم فاعل ضمیر مستتر ہے. اس میں تم اچھی طرح جانتے ہو. یہاں ایک آپ کے لیے نیا پوائنٹ سیکھنے کا یہ ہے کہ جب فعل مضارع سے پہلے قد آ جائے گا تو آپ کو ترجمہ حال میں ہے. کیونکہ جب ہم نے فعل مضارع سیکھا، اسٹارٹ کیا، تو ہم نے وہاں اس کے ترجمے میں سیکھا تھا کہ اس کا ترجمہ حال یعنی پریزنٹ اور مستقبل فیوچر دونوں میں کیا جا سکتا ہے. اور پھر میں نے آپ کو تب بتایا تھا کہ ہم آگے چل کر سیکھیں گے کہ کن کن جگہوں پر ہم فعل مضارع کا ترجمہ صرف حال میں کریں گے یا صرف مستقبل میں. تو آج یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ قد کے ساتھ جب آپ کو فعل مضارع ملے گا تو آپ اس کی ٹرانسلیشن حال میں کریں گے. قد کے ساتھ فعل مضارع کا ترجمہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. قد لگنے سے فعل حال کا ترجمہ، فعل مضارع کا ترجمہ صرف حال پریزنٹ ٹینس میں کریں گے. فعل مضارع کا ترجمہ کبھی کبھار کے ساتھ لکھا جائے. میں تاکید کے لیے دوسرا سلوک، فعل مضارع میں تاکید کے لیے ایک نون لایا جاتا ہے جسے نون تاکید کہتے ہیں. اب یہ فعل مضارع میں تاکید پیدا کرنے کا ایک دوسرا سلوک ہے. اس کو سمجھیے گا یہ نون کیا ہے. دیکھیے اب فعل مضارع میں جب ہمیں تاکید پیدا کرنی ہے تو ہم اس کے آخر میں ایک نون کا اضافہ کریں گے، اسے نون تاکید کہتے ہیں. یہ نون ساکن بھی ہو سکتا ہے اور مشدد والا بھی، ٹھیک ہے، شد والا بھی. تو نون تاکید دو طرح سے ہوگا، نون ساکن اور نون مشدد. اب نون ساکن کو نون خفیفہ کہتے ہیں. اب جب کہ شد والا نون یعنی مشدد نون ہے اسے نون ثقیلہ کہتے ہیں. ان کی پہچان بہت آسان ہے، اس کو ہم آگے سیکھتے ہیں انشاءاللہ. سمجھنے کی بات، اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے
کہ کیا ان دونوں کی تاکید میں فرق ہے، یعنی نون خفیفہ اور نون ثقیلہ کی تاکید میں فرق ہے؟ دوسری بات، ان میں سے کس کا استعمال زیادہ ہے؟ تاکید تو دونوں پیدا کر لیں، تو کیا تاکید میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، ایک جیسی تاکید پیدا، اور نون ثقیلہ کا استعمال زیادہ ہے۔ اب آپ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں گی اور آپ کو وہاں پہ شد والا نون ملے گا یا نون مشدد ملے گا، آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ کیا وہ فعل مضارع ہے، اور پھر اس کا پہچان کریں۔ فعل مضارع کی بیسک گردان ہم نے جو بنائی تھی فاعل نام روٹ لیٹر سے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ وزن ہم نے رکھا تھا اس کا یفعل، فعل مضارع کے تو 3 وزن ہے، یفعل، 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 لیکن ابھی ہم یفعلو سے ہی کام کریں گے انشاءاللہ۔ تو گردان آپ کے سامنے ہے، ایک دفعہ اس کو ریوائز کر لیجیے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں آگے ہمیں کام کیا کرنا ہے، کہ ہم فعل مضارع میں تاکید کیسے پیدا کریں۔ گردان آپ کے سامنے تھی، آپ نے اس کو دیکھ لیا۔ اب ہم اس گردان کو 5 پارٹس میں ڈیوائڈ کریں گے، 5 روز بنائیں گے، ان سیگوں کو 5 لائنز میں لکھ لیتے ہیں آپ لوگ۔ تو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ہم ان کو کس طرح سے 5 جگہ پہ اس کو ڈیوائڈ کریں گے۔ سب سے پہلی بات، اس میں ہم کیا کریں گے، ہم گردان یفعلو سے شروع ہو رہی ہے تو ہم یفعلو سے ہی شروع کریں گے۔ اب یفعلو کے جو ساؤنڈ والے باقی گردان کے صیغے ہیں، ہم ان کو اس رو میں لکھ لیں گے اپنے پاس۔ تو یفعلو کے ساتھ دوسرا صیغہ آتا ہے اسی کے ساؤنڈ والا، واحد مؤنث غائب کا تفعلو، واحد مذکر حاضر کا تفعلو۔ اس کے بعد نیچے اگر ہم جاتے ہیں متکلم کے صیغوں میں، تو واحد متکلم کا صیغہ افعلو اور جمع متکلم کا صیغہ نفعلو۔ آپ غور کیجئے کہ ان سب کی ساؤنڈ ایک جیسی ہے۔ اچھا، یہاں پر سب سے پہلے آپ کو ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ ان کو میں کیوں سیپریٹ کر رہی ہوں۔ ان کو سیپریٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ان میں سے، اگر میں یفعلو کی بات کروں تو میں یفعلو پر کوئی افیکٹ لے کر آتی ہوں تو وہ سیم افیکٹ باقی ان 4 صیغوں پر بھی جائے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح وہ انہی 4 صیغوں پر بھی وہ افیکٹ ہوگا۔ تو اس لیے ہم جن پر سیم افیکٹ آنا ہے ان کو اسی طرح ڈیوائڈ کر لیتے ہیں۔ سیکنڈ رو، یفعلو کے بعد یعنی واحد مذکر کے بعد مثنیٰ مذکر غائب کی باری آتی ہے، تو وہ صیغہ کون سا بنتا ہے؟ یہ سیکنڈ رو آ گئی، یفعلانی۔ اب اسی ساؤنڈ کے باقی کون سے ہیں ہمارے پاس؟ تفعلانی، 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 یعنی اس میں آپ کے پاس مثنیٰ مذکر غائب اور جو حاضر کے دونوں ہیں، مثنیٰ حاضر کے وہ صیغے آ گئے۔ تھرڈ رو کی طرف چلتے ہیں۔ اب واحد مذکر غائب کے بعد مثنیٰ مذکر غائب، اب تیسرا صیغہ آ گیا آپ کے پاس جمع مذکر غائب، یفعلون۔ اب اسی ساؤنڈ کا دوسرا صیغہ کون سا ہے؟ جمع مذکر حاضر کا، تفعلون۔ تو یہ 2 بھی ادھر آ گئے، 3 روز ہماری تیار ہو گئے، 4تھ رو کو تیار ہو۔ اب اس کے بعد دیکھیے ہمارے پاس یہاں پر مثنیٰ کے صیغے بھی آ گئے، واحد مذکر غائب کا صیغہ آ گیا اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ آ گیا، پھر جمع کے صیغے آ گئے۔ اب جمع مؤنث کا صیغہ دیکھ لیتے ہیں، جمع مؤنث غائب کا 4تھ رو میں ہم اس کو لے آئیں گے، یفعلنا۔ اب اسی ساؤنڈ کا کون سا ایک اور صیغہ ہے؟ جمع مؤنث حاضر کا، تفعلنا۔ اب آخر میں ہمارے پاس ایک صیغہ بچا جو کہ پوری گردان کا ایک جو ہے یونیک صیغہ ہے، وہ ہے 5ویں رو میں آئے گا، تفعلین، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ، کیونکہ یہ یونیک ہے اور دیکھیں وہ بالکل اکیلا ہے نیچے الگ سے ہے۔ اب یہ 5 آپ کے سامنے ہم نے روز بنا لی اس ایک گردان سے، ایک جیسے ساؤنڈ والے تمام صیغوں کو ایک ایک رو میں ڈیوائڈ کر لیا۔ یہاں پر اب آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ سیکنڈ رو اور 4تھ رو
मुसन्ना के सीगे और जमा मुअन्नस के सीगे दोनों, इनका इस्तेमाल कुरान मजीद में नहीं है। ठीक, मुसन्ना और जमा मुअन्नस के साथ नून सकीला का कुरान में इस्तेमाल नहीं है। अब ये बताने का क्या मकसद है आपको? मकसद ये कि क्योंकि इनका कुरान मजीद में इस्तेमाल नहीं है तो हम इनमें इन पर वर्किंग नहीं करेंगे, ताकि हमारी टाइम की भी बचत हो जाए। हम उन सीगों की प्रैक्टिस करें, हम उन सीगों को सीखें कि जो कुरान मजीद में आए हैं। तो इससे हमारे जो है हमें सीखने में भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 करके रो 1 और 3 और 5, ठीक है, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ को हम देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट रो के तरफ चलते हैं कि इसमें कैसे हम ताक़ीद करें। फर्स्ट रो है, पहला सीगा उसका ले लेते हैं। उसमें पहला सीगा आ रहा है यफ़अलू, क्योंकि यहाँ देखिए आप गौर करेंगे, अगर इस जो हमारे पास ये टेबल तैयार हुआ, ये पहली रो है, इसमें तमाम सीगों के आखिर में पेश मिल रही है आपको। ठीक है, थर्ड रो में आपको जो आपको सीगे मिल रहे हैं, इनमें ऊना की साउंड आ रही है, और फिफ्थ में जो हमारा यूनिक सीगा है उसमें ईना की साउंड आ रही है। तो वर्किंग अब हम इस हिसाब से करते हैं। तो पहली रो का पहला हम फेल लेते हैं यफ़अलू, इसके आखिर में पेश आ रही है, इस पेश को जबर से बदल देंगे। तो जिन सीगों के आखिर में पेश है उनको जबर के साथ बदल देंगे। तो यफ़अलू से यफ़अल। अब हम इसमें इस फेल के आखिर में नून मुशद्दद ऐड कर देंगे, तो हमारा सीगा तैयार हुआ यफ़अलन्ना, यफ़अलन्ना। तो अब जो इफेक्ट यफ़अलू पे आया नून मुशद्दद के ऐड होने से, वो बाकी जो 4 सीगे हैं उन पर भी सेम इफेक्ट आएगा। तफ़अलू पर, तफ़अलू, अफ़अलू और नफ़अलू पर भी। अब थर्ड रो में देखते हैं। थर्ड रो में क्या था? हम थर्ड रो से लेते हैं यफ़अलूना। इसमें क्या करना है? इसमें हमें ये वाओ नून को डिलीट करते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ से खत्म कर देंगे। तो क्या पीछे बचा? हमारे पास यफ़अलू। अब यफ़अलू बचा, इसमें नून मुशद्दद इसके आखिर में लगाएंगे तो हमारे पास सीगा तैयार होगा यफ़अलुन्ना, यफ़अलुन्ना। क्या करेंगे कि जिन सीगों के आखिर में वाओ नून है इसको ड्रॉप कर देंगे। तो 2 ही सीगों में वाओ नून है, यफ़अलूना और तफ़अलूना। तो वो सीगे तैयार हो जाएंगे यफ़अलुन्ना और तफ़अलुन्ना। इनकी पहचान मैं आपको आगे चलकर टेबल में बताती हूँ कि कैसे करेंगे इन सीगों की, जब ये कहीं आपको अरबी टेक्स्ट में मिलेंगे। फिफ्थ रो का सीगा देखते हैं, हमारे पास है तफ़अलीना। इसमें क्या करेंगे? हम इस या नून को ड्रॉप कर देंगे, हमारे पास बचा तफ़अली। तफ़अली के आखिर में नून मुशद्दद ऐड करेंगे तो हमारे पास सीगा बन जाएगा तफ़अलिन्ना, तफ़अलिन्ना। तो वाहिद मुअन्नस में हाजिर के सीगे से या नून ड्रॉप कर देंगे, हमारा सीगा तैयार हो जाएगा नून मुशद्दद के ऐड करने से। अब आगे देखिए, ये 3 रोज़ हैं, इनमें क्या-क्या वर्किंग की हमने। अगर नून, और आपने सीगा कैसे पहचानना है, ठीक है? तो अगर नून मुशद्दद से पहले ज़बर नज़र आए तो ये फर्स्ट रो से सीगा हो। अब फर्स्ट रो के सीगे आपके ज़हन में होने चाहिए कि वहाँ कौन-कौन से सीगे थे, कि वहाँ पे हमारे पास वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा था, वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा था, फिर उसके बाद हमारे पास वाहिद मुज़क्कर हाज़िर का सीगा था, फिर वाहिद मुतकल्लिम का और जमा मुतकल्लिम का सीगा था। आप इस तरह से इस चीज़ को याद रखेंगी तो आपको सीगे को पहचानने में आसानी हो जाएगी। और उसके बाद सबसे बड़ी निशानी ये है कि आप अलामत मुज़ारे को देखेंगे। अगर नून मुशद्दद से पहले पेश नज़र आए तो ये थर्ड रो से सीगा होगा, और थर्ड रो में हमारे पास 2 ही सीगे हैं, यफ़अलूना और तफ़अलून। ठीक है? तो नून मुशद्दद से पहले पेश मिल जाए तो आपको बिल्कुल क्लिक कर जाना चाहिए कि ये जमा के सीगे हैं। फिर आप अलामत मुज़ारे देखेंगी, या हुआ तो वाहिद मुज़क्कर जमा मुज़क्कर गायब का सीगा होगा, ता हुआ तो जमा मुज़क्कर हाज़िर का सीगा मिल जाएगा आपको। ठीक है? अगर नून मुशद्दद से पहले ज़ेर नज़र आए तो ये फिफ्थ रो से सीधा होगा। तो ये तो बहुत आसान है क्योंकि ये एक सिंगल सीगा है यूनिक सा।
तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा है। तो आप इन रोज को कलर करके भी याद कर सकती हैं कि पहली रो में 5 सीगे कौन से हैं, थर्ड रो में 2 सीगे हैं जमा के, और फिफ्थ रो में आपके पास वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा है। अब फेल मुजारे में डबल ताकीद। फेल मुजारे में डबल ताकीद के लिए शुरू में लामे ताकीद लगाया जाता है। जैसे लामे ताकीद हम जुमला इस्मिया में हरफ ताकीद इन्ना के साथ लेकर आए थे, जैसे हम कद के साथ लामे ताकीद लाए थे और वहां पर पीछे कसम महजूफ थी। इसी तरह जब फेल मुजारे में हम डबल ताकीद लेकर आएंगे, उससे पहले लामे ताकीद लगाएंगे, तो यहाँ भी एक कसम जो है महजूफ होगी, हिडन पर। तो लामे ताकीद के साथ कैसे हमारा जो है सीगा तैयार होगा, उसको करते हैं। पहली रो से एक सीगा ले लेते हैं, उसी पर वर्किंग करते हैं। यफ़अलु, पेश को जबर से बदला यफ़अला, और नून मुशद्दद ऐड किया तो यफ़अलन्ना, और लाम में ताकीद इसके शुरू में लग जाएगा, तो हमारा सीगा तैयार होगा ला यफ़अलन्ना, ला यफ़अलन्ना। तो ये था हमारा फेल मुजारे में डबल ताकीद का सीगा। अब आगे देखिए कि फेल मुजारे का नून सकीला के साथ तर्जुमा। अब ट्रांसलेशन कैसे करेंगे हम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, फेल मुजारे के साथ जब भी नून सकीला लगेगा तो तर्जुमा सिर्फ मुस्तकबिल में होगा। अब देखिए यहाँ दूसरा पॉइंट आपके पास आ गया कि फेल मुजारे का तर्जुमा मुस्तकबिल में हम करेंगे। नून सकीला और नून खफीफा, इन दोनों के साथ आप तर्जुमा मुस्तकबिल में करेंगे। अब हमने नून खफीफा पे वर्किंग क्यों नहीं की, इसलिए कि नून खफीफा जो है उसका इस्तेमाल कुरान मजीद में बहुत कम है। उसकी मैं सिर्फ आपके साथ गर्दान अभी शेयर करूंगी, और उसमें आप चेंजेस देखिएगा कि जो चेंजेस से नून सकीला में आई हैं वही चेंजेस नून खफीफा में हैं। नून खफीफा के कुरान मजीद में सिर्फ 2 ही अफआल आए बस। तो फिर हमने प्रेफरेंस इसलिए नून सकीला को दी कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल नून सकीला का हुआ है, तो हमने इसका इस्तेमाल पहले सीख लिया है। उसकी जो आपके साथ कॉन्जुगेशन टेबल है वो मैं भी आके शेयर कर दूँ। फेल मुजारे का नून सकीला के साथ तर्जुमा। अब जरा आपने डिफरेंस नोट करना है। या फालू फेल मुजारे मारूफ है, वो करता है, करेगा। अब जब नून सकीला आ जाएगा तो यफ़अलन्ना, वो जरूर करेगा। देखिए ट्रांसलेशन में मुस्तकबिल में हमने की, ठीक है, वो जरूर करेगा। अब लामे ताकीद के साथ ला यफ़अलन्ना, वो जरूर ब जरूर करेगा। तो ये डिफरेंस है मुजारे मारूफ और नून सकीला के साथ, और फिर डबल ताकीद के साथ जब लामे ताकीद भी आ गया तो फिर किस तरह से हम ट्रांसलेशन करेंगे, तीनों आपके सामने आ रही है। आगे देखिए, अब ये नून सकीला के साथ फिल मुजारे की गर्दान देखते हैं। तो पहला सीगा हमने तैयार किया था लयफ़अलन्ना, ये वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा हुआ ज़मीर इसमें फाइल है। अच्छा, अब मैंने क्योंकि हमने पढ़ लिया कि मुसन्ना के सीगे नहीं आएंगे और जुम्मा मुअन्नस के सीगे नहीं आएंगे, तो वो मैं इसीलिए वो गर्दान में नहीं लिखूंगी, ताकि आपको समझने में और याद करने में आसानी हो। आपने याद बस ऐसे रखना है, इसको मैं आपको एंड पे बताती हूँ गर्दान के। लयफ़अलुन्ना जमा मुज़क्कर गायब, मुअन्नस देखिए वाहिद मुअन्नस गायब, लतफ़अलन्ना वाहिद मुज़क्कर हाजिर, लतफ़अलन्ना जमा मुज़क्कर हाजिर, लतफ़अलुन्ना वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस हाजिर, लतफ़अलिन्ना वाहिद मुतकल्लिम लअफ़अलन्ना, और जमा मुतकल्लिम ला नफ़अलन्ना। अभी पूरी गर्दान आपको सामने हासिल होती है, ठीक है, रेडी है ये बिल्कुल। पहचान हम कैसे करेंगे, आपके सामने कोई फेल आता है और उसमें नून मुशद्दद आपको मिल रहा है उसके आखिर में, तो आप सबसे पहले उसके पीछे वाली हरकत देखेंगे कि इसके पीछे कौन सी हरकत है। अगर इसके पीछे आपको जबर मिल रही है तो आप
کو ذہن میں فوراً جانا چاہیے، فرسٹ رو میں سے سیدھا ہے. اس کے بعد آپ علامت مضارع کو دیکھیے. اگر تو یا ہے تو پھر یہ آپ کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اگر آپ کو نون مشدد سے پہلے پیش مل رہی ہے تو آپ نے فوراً ذہن میں لانا ہے کہ یہ تھرڈ رو کا صیغہ ہے، اور علامت مضارع کو جا کر دیکھنا ہے. یا ہوگی تو جمع مذکر غائب، تا ہوگی تو جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہوگا. یہ پیش آپ کو سمجھا دے گی کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، اور زبر آپ کو بتائے گی کہ یہاں پر یہ فرسٹ رو کے صیغے ہیں، تو ہمیں علامت مضارع دیکھنی ہے. اگر آپ کو نون مشدد سے پہلے زبر ملے اور علامت مضارع تا ہو تو آپ کے یہ دو صیغے ہوں گے، واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر حاضر کا. اور آپ کو جو کانٹیکسٹ ہے وہ بتا دے گا کہ یہاں پر مؤنث کے لیے صیغہ استعمال ہو رہا ہے یا مذکر کے. اگر نون مشدد سے پہلے آپ کو زیر مل جائے تو پھر تو بہت ہی آسان ہے کہ آپ اس کو سمجھ جائیں گی یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. اس کے بعد اگر آپ کو نون مشدد سے پہلے زبر اور علامت مضارع حمزہ مل رہی ہے تو یہ آپ نے بالکل اس کو آسانی سے پہچاننا ہے کہ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. اور اگر نون مشدد سے پہلے زبر اور پھر آپ کو مل جائے نون تو آپ نے کہنا ہے یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس میں نحن فاعل ضمیر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی نون ثقیلہ کے ساتھ گردان. اب ہم نون خفیفہ کے ساتھ گردان کو سمجھ لیتے ہیں. نون خفیفہ دیکھیے سمپل، بالکل وہی سیم رولز ہوں گے. پیش والے صیغوں کے آخر سے پیش کو ختم کر کے ہم زبر ایڈ کریں گے اور اس کے آخر میں نون ساکن کا اضافہ کر دیں گے. تو پہلا صیغہ کیا ہمارا بنے گا؟ لیفعلن، جمع مذکر غائب کا لیفعلن. دیکھیے سیم تھا، واو نون ڈراپ کریں گے، نون ساکن ایڈ کر دیں گے. تو لا یفعلن واحد مؤنث غائب کا لتفعلن، جیسے لا یفعلن بنا اسی طرح اس کی گردان کے باقی 5 صیغے بھی بن جائیں. ٹھیک ہے، واحد مذکر حاضر لتفعلن. اب جمع مذکر حاضر دیکھیے لتفعلن، سیم جیسے ہمارا واو نون ڈراپ کیا ہم نے واحد مذکر غائب سے، تو یہاں بھی واو نون ڈراپ کریں گے، نون ساکن کا اضافہ کر دیں گے. واحد مؤنث حاضر لتفعلن، یا نون ڈراپ کیا، نون ساکن ایڈ کر دیا. اور واحد متکلم کو دیکھیے صرف نون ساکن کا اضافہ کرنا ہے، وہی پیش ہم نے جو تھی زبر میں بدلی اور نون ساکن کا اضافہ کر دیا. لا افعلن اور لا نفعلن، اس میں بھی مثنیٰ اور جمع کے صیغے استعمال میں نہیں ہیں. ویسے ہی قرآن مجید میں اس کے صرف 2 ہی افعال آئے ہیں، تو اس لیے ہم نے اس کی صفات کے ساتھ گردان شیئر کر دی ہے. آئی ہوپ کہ آپ نے اس جو پوائنٹس ہیں میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کو اچھے سے سمجھ لیا ہوگا. گردان کی پہچان بھی آپ نے اچھے سے سیکھ لی ہوگی کہ آپ کے سامنے جب بھی کوئی اس طرح سے صیغہ آئے گا جس کے آخر میں آپ کو نون مشدد مل رہا ہے تو آپ نے اپنا اس میں فائل کیسے پہچاننا ہے. آگے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو شرح صدر عطا فرمائے. اب ہم فعل مضارع میں تاکید نون ثقیلہ سے لا کر اس کی پریکٹس کریں گے. فعل مضارع پر لام تاکید اور نون ثقیلہ داخل کریں گے. سب سے پہلے آ جائیے ہادیہ. جی استاذہ. ہادیہ، آپ کو فعل مضارع کا صیغہ دیا جائے گا، آپ نے روٹ لیٹر اور اس میں جو ضمیر فاعل ہوگی وہ بتانی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس پر لام جی تاکید اور نون ثقیلہ کا استعمال کر کے ٹرانسلیشن کرنی ہے. آپ کے سامنے صیغہ آیا ہے اذهبوا، روٹ لیٹر بتائیے گا. زال ہا با. ذهب جانا، اس میں فاعل ضمیر کیا ہے؟ انا. انا فاعل ضمیر. ٹھیک ہے، اب آپ اس پہ لام تاکید اور نون ثقیلہ کا استعمال کیجیے. کیسے کریں گی؟ کیا ہمیں پہلے اس کے
पहले जो बा है इसके ऊपर पेच हटा के ज़बर लगाएंगे और नहीं, फिर नून आप मुशद्दद लगाएंगे। कहते हैं कि हम फेल मुजारे के आखिर में आने वाली पेश को किससे बदलेंगे? अ, ज़बर। ज़बर से बदलेंगे। बिल्कुल। ठीक है, रूट लेटर तो चेंज होते रहते हैं ना हादिया? तो जी आप उस्ताज़ा। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि हम फेल मुजारे के आखिर में आने वाली पेश को किससे बदल देंगे? ज़बर से। उसके बाद आप क्या लगाएँगी आप आखिर में? फिर आखिर में नून मुशद्दद लगाएंगे उसके। ठीक है, ओके। अब लामे ताकीद और नून मुशद्दद लगा के क्या सीगा बन जाएगा आपका? ला अज़हबन्ना। लअज़हबन्ना। गुड। अब मैंने आपको बताया ज़ाल हा बा जाना, तो ट्रांसलेशन कीजिए। मैं ज़रूर ब-ज़रूर जाऊँगा। मैं ज़रूर ब-ज़रूर जाऊँगी। हम मोनस है ना, हम अपनी बात कर रहे हैं, ठीक? जी। तो अगर मैं आपसे कहूँ लतज़हबुन्ना, तो मैं कौन-सी उसमें फ़ाइल ज़मीर की बात कर रही हूँ? ये है, लत ये लत फ़ाइल ज़मीर है हुँ, जमा की और मुअन्नस की इसका फ़ाइल होगा, हुम फ़ाइल होगा। लतज़हबुन्ना, गौर कीजिए। अलामत मुज़ारे क्या है? ता है। और बुन्ना, अ, नून मुशद्दद से पहले क्या आ रहा है? पेश आ रही है। तो कौन-सा सीगा बनेगा? कौन-सी उसमें फ़ाइल होगी ज़मीर जो बन रही? इसमें फ़ाइल होगी अ, अंतुम। अंतुम, ठीक है? अंतुम ज़मीर जो है वो फ़ाइल बनेगी, ठीक है? जी उस्ताज़ा। बारकल्लाहु फ़ीक। आगे आ जाइए। शहरा जमाल आप आ जाइए। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शैला जी, आपके पास है फ़ेल मुज़ारे यंसुरू। रूट लेटर बता दीजिए। नून स्वाद रा। नून सॉद रा मदद करना। इसमें कौन-सी ज़मीर है जो फ़ाइल बन रही है? हुआ। हुआ। तो क्या ट्रांसलेशन होती है फ़ेल मुज़ारे की मरूफ की? वो मदद करता है या करेगा। करेक्ट, गुड। अब आप मुझे इस पर लामे ताकीद और नून मुशद्दद लगाकर बना दीजिए, सीधा बता दें। लयंसुरन्ना। हुँ, लयंसुरन्ना। अब ट्रांसलेशन कैसे करेंगी इसकी? वो ज़रूर ब-ज़रूर मदद करेगा। हुँ, बस आपने इस बात को ज़हन में रखना है कि जब हमारा नून सकीना या ख़फ़ीफ़ा आए तो फ़ेल मुज़ारे की ट्रांसलेशन मुस्तक़बिल में करेंगे, ठीक है? जी। आप मुझे बता सकती हैं कि हम अगर किसी सीगे को जो हमारे पास फ़ेल मुज़ारे आए सामने, तो हम उसको कैसे पहचानेंगे? मतलब क्या पहचानना? जी? लाम के बाद अलामत मुज़ारा से पहचानेंगे। ठीक है, और नून मुशद्दद से पहले देखेंगे आप कि कौन-सी हरकत है। पेश होगी इधर तो कौन से सीगे होंगे, कौन-सी रो के? वो वो जमा होगा, अगर ज़बर है तो वाहिद है। और अगर नून मुशद्दद से पहले ज़ेर मिल जाए आपको तो कौन-सा सीगा बनेगा वो? तो ये मुअन्नस हुँ, वाहिद। अनती फ़ाइल ज़मीर होगी उसमें, ठीक है? बारकल्लाहु फ़ीक। आगे आ जाइए, यास्मीन आप आ जाइए। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके पास फ़ेल है तदखुलू, रूट लेटर बताइए। दाल ख लाम। ठीक है, दाल खाना, दाखिल होना। अब वाहिद मुअन्नस का सीगा है ये। तो ट्रांसलेशन कैसे करेंगी फ़ेल मुज़ारे मअरूफ़ की? इसका ये हो जाएगा, वो दाखिल होती है या होगी। ठीक है। अब तदखुलू पर लाम ताकीद और उसको नून सकीला लगाकर इसमें ताकीद लेकर आइए। ये हो जाएगा पेश बताइए, जाएगा लतदखुलिन खुलिन्ना।
वाहिद मोन्नस, ये गायब का है मैम? जी हाँ बिल्कुल। सही सही। मोन्नस जी हाजिर का तो सीगा ही और है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी। तो ये हो जाएगा लतद फुलन्ना। लतदखुलन्न। अब आप इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? वो जरूर ब जरूर दाखिल होगी। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे आ जाइए। चल एक और कीजिए आप फिर। जी कीजिए आप तरजीओ। ओके। तरजिउ रॉ जीम आइन। वापिस लौटना या लौटना। ठीक है। अब जी वाहिद इसका सॉरी फेल मुजारे मारूफ की ट्रांसलेशन कैसे करेंगे इसकी? सॉरी मैम, दोबारा कहें। ट्रांसलेशन कैसे करेंगी इसकी मुजारे मारूफ की? अच्छा, वो इसमें कैसे हो जाएगा? तरजीउ वाहिद मुझे करे। हम्म तुम हम्म तुम वापस हम्म जाओगे। आओगे। लौटना लौटोगे। वापस, हाँ। हाँ लौटोगे, वापस आना। ओके। रजा यरजू, हाँ ओके। तुम वापस लौटोगे, ठीक है, या तू वापस लौटता है, ठीक है। अब इस जी पर लामे ताकीद और नून सकीला लगा, नून मुशद्दद लगा दो। जी, ये हो जाएगा तर तरजी तरजी अन्ना लामे ताकीद। लतरजी अन्ना। ला तरजी अन्ना। ट्रांसलेशन। तुम जरूर बजरूर लौटोगे और ये वापस आओगे। ठीक है। बारकल्लाहु फीक। सकला कर। उमेशा आ जाइए। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। और उमेशा आप साइड चेंज कीजिए, आपके पीछे बहुत नॉइज है प्लीज। हाँ तहसीन जी आप आ जाइए। जी जी तहसीन जी देखिए, तजरिबीना। अब मुझे रूट लेटर बता दें। तदरब तदरीबीन लिखा हुआ इसके ऊपर। तदरीबीना। जबर है उस दाद के ऊपर। जी इसको आप साइलेंट कर देना, फेल मुजारे का सेकंड हाँ से। जी ठीक है। जी जी हाँ जी। तदरीबीन, ये दाद रा और बा इसका रूट लेटर है। नहीं कैसे? दाद रा और बा। बिल्कुल। ठीक है। आप जी दुआ दराबा मारना। हाँ जी तदरीबीना। जी इसमें कौन सी जमीर जी। फाइल है? एक मैं तो ये डालू, मेरा हैंड आ गया है बात से। हाँ जी, इसमें वाहिद मुन्नस हाजिर जमीर कौन सी है? अंती अंती। अंत। गुड। तो ट्रांसलेशन क्या होगी इसमें? दरबा यदरिबु, मारना इसका है। जी जी, मारना। जी जी। तदरबीना, तुम मारती हो या मारोगी। जी तदरीबीना का। ठीक है। हाँ जी अब इस जी जी। पर लामे ताकीद और इसमें नून मुशद्दद दाखिल कीजिए। लतदरिब लतदरिब देख लतदरिबिन जैसे ये, लतदरिबन। हाँ देखिए हाँ जैसे जी ये खुद सीगा बड़ा यूनिक है ना, तो इसमें हमने हाँ जी क्या किया था? हमने इसका ये जो या नून था ना, इसको आपने इसमें से हटा देना। ठीक है। हाँ जी। अब पीछे क्या बचा आपके पास? बी तदरीबी। लतदरिबी। ठीक है। अब हाँ लगाइए, जी। लामे ताकीद लगाएं और आखिर में नून मुशद्दद लगाएं जरा। लतदरिबिन। शाबाश। अब हो गया पॉइंट क्लियर। ठीक है। लतदरी हाँ जी जी। ना। अब आपने बिन्ना याद जी रखना है तहसीन जी कि जी। जब भी हाँ जी आपको नून मुशद्दद मिले और उससे पहले जी आपको जेर भी मिल रही है, ठीक है, जी तो और अलामत मुजारता तो होगी, तो आपने आंखें जी। बंद करके कहना है इसमें अंती फाइल जम गया। ठीक है। 38 जी जी। हाँ जी। अब ट्रांसलेशन कीजिए कि कैसे करेंगे ताकि भी ट्रांसलेशन इसकी। तुम जरूर बर जरूर मारोगी। जी बिल्कुल। तुम जरूर बात जरूर मारोगी। बारकल्लाहु फीक। जी
आ जाइए रुमैशा। जी मैम, आवाज आ रही है मैम? जी बिल्कुल। आपके लिए फेल है नज़हबू। रूम जी लेटर बताएं। मैम, ज़ाहबा। ओके, अब मुझे ये बताइए, ज़ालहाबा जाना, इसमें कौन सी जी जगह जो फाइल है? मैम, इसमें नहनु। नहीं, गुड। अब जो हमने पढ़ा था, ये कौन सी रो का सीगा है, किस रो में आता है? मैम मैम, ये पहली रो में आएगा। वेरी गुड। और मैम हम पहले रो का रूल वो हमने क्या सीखा था? मैम, उसमें हम लोग पेश हटा के जबर कर देंगे और फिर आगे नून शद, यानी कि नज़हबन्ना। देखिए, और फिर ठीक है, हमने ये स्पेस को जबर से बदल दिया। अब इस पर लामे ताकीद और नूने सकीना दाखिल करें। ला नज़हबन्ना। शाबाश, गुड। अब ट्रांसलेशन कर दीजिए। हम जरूर बजरूर जाएंगे। बिल्कुल, हम जरूर बजरूर जाएंगे। बारकल्लाहु फीकी। अच्छा, मुझे आप एक और पॉइंट बताकर जाएं यहाँ पर कि हमने जी जो जमा के सीगे थे, ठीक है, जी उनमें क्या चेंजेस की थी? थर्ड रो में, अ, थर्ड रो। मैम, थर्ड रो में हम्म मैम, उसमें हमने वाव नून ड्रॉप कर दिया था। हम्म हम्म और मैम हमने वहां पे हम पेश लेकर आए थे, यानी कि यफ अलना के वजन पे हमने किया था फिर। ना, पेश तो थी ना, जैसे मैं आपसे कहूँ यफ़अलूना, तो वाव नून हटा दी तो लाम पर पेश तो रह गई, ठीक है। अब आखिर में आपने जी क्या किया उसके? मैम, ये हमने नून शकीलिया डाल दिया। नून सकीना डाल दिया, तो वो क्या बन गया? यफ अलुन्ना और तफ हम्म अलुन्ना। शाबाश, वेरी गुड। तो हमने उसकी पहचान क्या कर रखनी है रुमैशा? मैम, इसमें हमारे पास पेश पे होगा बिल्कुल, आपने क्या देखना है कि अलामत मुजारे कि चेक नून। करनी है और फिर नून मुशद्दद जी से पिछली हरकत चेक करेंगे। पिछली हरकत क्या होगी जी तो जमा का सीगा होगा? मैम, पेश होगी तो फिर जमा कसी का होगा। वेरी गुड। अगर आपके पास नून मुशद्दद से पहले जेर मिल जाए तो कौन सा सीगा होगा, किस रो का? मैम, फिर हमारे पास वाहिद मोनस हाजिर का। फिफ्थ रो का। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब आपको आई होप कि ये चीज आप लोगों ने समझ ली होगी, ठीक है। जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी फेल मुजारे में ताकीद, फेल मुजारे पर लाम ताकीद और नून खफीफा और नून सकीना दाखिल करते हुए अरबी तर्जुमा कीजिए। स्टूडेंट्स को बुलाते हैं पार्टिसिपेशन के लिए। और आ जाइए समीरा जी। जी जी, आपको मैं जुमला दे रही हूँ, वो जरूर बजरूर अल्लाह का शुक्र करेगा। अब आप मुझे बताइए कि आपको इसमें फाइल क्या मिल रहा है? हुआ। हाँ, अभी हम उर्दू में डिस्कस करेंगे ना, हमारे पास उर्दू तर्जुमा आ रहा है, अच्छा ठीक है। तो आप बताइए। अच्छा, वो वेरी वो गुड, वो ठीक हो गया। अब आपको इसमें मफूल मिल रहा है कोई? हाँ जी, अल्लाह। बिल्कुल, अल्लाह का, ठीक है। और जी, फेल क्या आ रहा है? शुक्र करेगा। बिल्कुल, शुक्र करना फेल आ गया, ठीक हो गया। अब हमने फाइल, मफूल और फेल तीनों ही तलाश करनी है। तो जरूर बर जरूर जी यहाँ पर ताकीद के लिए है, ठीक है जी। हमने क्योंकि हाँ जी जी ये स्लूब फेल मुजारे में ताकीद किस तरह से लाई जाती है, तो शुक्र हाँ इसके रूट लेटर मैं आपको दे रही हूँ, शीन काफ रा से या उलू के वजन पर बनेगा, ठीक है। तो जरा पहले अच्छा जी। सिंपल फेल मुजारे बनाइएगा। यफ़उलु का यशकुरु। शाबाश, यशकुरू। अब ऐसा आप लोग कीजिए, बल्कि आप भी अपने सामने जी कॉपी और पेंसिल रखिए और साथ बना के देखिएगा। देखिए, अब यशकुरू आपने बना लिया, फाइल हमारा क्या अच्छा है? वो, यानी हमें कौन सा सीगा लाना है जी समीरा जी? वो के लिए, हाँ जी। वो के लिए कौन सा सीगा लाएंगे समीरा जी? अ, वो गायब है ना, वाहिद है, गायब है, मुज़क्कर है, तो पहला सीगा ही लाएंगे। शायद
ہاں جی واحد غائب مذکر کا. ہاں جی تو پہلا سیگا ہاں واحد جی وہ آپ نے بنا لیا یشکرو. ٹھیک. اب اس پر لام تاکید لگائیے سب سے ہاں جی جی. اور پھر اس پہ نون ثقیلہ لگائیں سب سے پہلے. تو کیا فعل بن جائے گا آپ کا؟ یش پورنا نہیں یشکورنا یشکورنا. یشکرنا. گڈ. لا یشکرنا. ہاں آگے فعل لگائیے اب ہاں جی. کیونکہ لا یشکرن. لا یشکورنا لا یشکورنا. جی تو او آگے سوری اچھا آگے والا بھی اچھا اللہ وہ بھی لا یشکورن اللہ. بالکل. اب آپ یہاں غور کیجیے عربی میں سمیرہ جی کہ ہمارے پاس لا جی یشکرنا ہاں جی اس میں یہ فعل اور فاعل دونوں موجود ہیں آپ کے پاس. ٹھیک ہے. ہاں اب جی. یہ گردان کا صیغہ ہم کیسے پہچانتے ہیں؟ میں نے آپ کو کل پہچان اس کی بتائی تھی. اس کا یہ جن کا ایک ہی وزن آتا ہے نا سارے یفعلو تفعلو تفعلو افعلو اور نفعلو یہ سب کے وہ اس کے سیگے جو آتے ہیں ہاں اب یہ ایک ہی طرح کے جن کی ہے فرسٹ سب رو کی والے ساؤنڈ. ہاں جی فرسٹ رو والے ایک فرسٹ رو ساؤنڈ. والے آ گئے نا. ٹھیک ہے. اور یہ ہمارے پاس یہ جو ہے نا ہاں جی بتا رہی ہے نون مشدد سے پہلے علامت مضارع یا ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ یہاں پر ہوا فاعل ہوگا. یہ میں آپ کو جب آپ کے سامنے عربی ٹیکسٹ آئے گا اس کے لیے پہچان کے لیے بتا رہی ہوں. تو اب لا یشکرن اللہ اچھا تو یہ آپ کا نون ثقیلہ کے ساتھ ہو گیا. اب مجھے آپ نون خفیفہ کے ساتھ بتائیے. اچھا یہی والا جی جملہ یہی رہے گا صرف نون خفیفہ. اچھا جی اچھا لا یش نون خفیفہ کیا مطلب؟ نون خفیفہ جس کے وہ جزم آتی ہے جی لا جی یشکرن لا یشکرن للہ. نل. اچھا زیر آ جائے گی اس کے نیچے. صرف ہم ملانے کے لیے زیر دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اچھا ٹھیک. لا ٹھیک ہے. اب میں نے اس کو یشکرون. اچھا ٹھیک ہے سمجھانے کے لیے لکھا ہے لیکن جب آپ ملا کے پڑھیں گے تو ہم ادھر نیچے زیر دے دیں گے. ٹھیک ہے. زیر دے دیں گے. ٹھیک ہے. لا یشکرن اللہ لا یشکرن اللہ. ٹھیک ہے. لا یشکرن اللہ. ٹھیک. چلو کلیئر ہے. ڈاؤٹ تو نہیں ہے کوئی؟ ہاں جی نہیں اب یہ اس کا نہیں تھا یاد آ رہا یہ کہ اس کو کیسے ملانا جزم والے کو. یاد رکھیے کہ جب بھی آپ کو اول تو فعل پر زیر نہیں ملتی. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو کہیں جی تو اس کا مطلب ہے وہاں ساکن تھا اور اس کو آگے ملانے کے لیے ہم نے زیر دی ہے. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. ہاں جی ٹھیک ٹھیک ہے شکریہ. وہی ہادیہ آ جائے آپ. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہادیہ جملہ پڑھیے. تم مؤنث ضرور قرآن پڑھو گی. فاعل فعل مفعول سب کچھ بتائیے اس میں کیا کیا ہے. اس میں فائل جو ہے مستتر فائل جو ہے اس کے اندر ہے انتی کی فائل ہے. دیکھیں ابھی ہم اور ٹیکسٹ کی بات کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو آپ مجھے اردو میں فاعل فعل مفعول بتائیں نا اس والے جملے میں بھی. ٹھیک ہے. پھر ہم اس کی عربی تیار کریں. فاعل کیا ہے؟ اردو میں فائل ہے اس میں تم مؤنث. ٹھیک ہے. اور مفعول کیا اور بنے گا؟ مفعول قرآن. ٹھیک ہے. اور فعل کہاں ہے اس میں؟ پڑھو گی. پڑھو اس میں فعل ہے. گڈ. پڑھنا فعل ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کو میں اس کی روٹ لیٹر دے رہی ہوں پڑھنے کے لیے. قاف را ز یفعلو کے وزن پر پہلا صیغہ بنائیے سب سے پہلے گردان کا. یقرأ. یقرأ. اب کیونکہ ہم نے کہا تم مؤنث تو تم مؤنث کون سا صیغہ آ جائے گا؟ کون سا ہم لے کے آئیں گے فاعل ادھر؟ اس میں آئے گا یقرأینا. یقرائی.
देखें यकराइना, अलामत मुजारे पर दोबारा जरा रोशनी डालें कि आपने कौन सी लेकर आना। तकराइना, तकराइना। शाबाश, तकराइना, गुड, वेरी गुड। अब आप इस पर लामे ताकीद और नून थकीला दाखिल कीजिए, क्या बनेगा? ला तकरा इन्ना। शाबाश, आपने ला तकरा इन्ना बनाया। क्या उसमें से तकराइना में से क्या चीज आपने डिलीट की है उसमें से? हमने इसमें से या और नून को ड्रॉप कर दिया। शाबाश, आप पूरा जुमला बना दीजिए, अरबी जुमला। ला तकरा इन्ना, मफूल लगाए आप। तुम मोहन्नस जरूर कुरान पढ़ोगी। मैं एक मिनट, सॉरी, मैं दोबारा पढ़ती हूँ, एक मिनट। ला तकरा इन्ना, ला तकरा इन्निल कुराना। ला तकरा इन्नल कुरान, गुड। अब आप नून खफीफा लगा दीजिए, नून मुशद्दद कीजिएगा। ला तकरा इन्निल कुराना। शाबाश, ठीक है। अब वो या रूल किया ना, नून साकिन का आगे मिलाने के लिए जेर देख ले, ठीक है, गुड, वेरी गुड। एक और कीजिए आप, जुमला पढ़िए। फातिमा, जैद और मरियम जरूर शेर को देखेंगे। आप मुझे फाइल फेल और मफूल बता दीजिए। इसमें फाइल है फातिमा, जैद और मरियम, और मफऊल जो है वो शेर है, देखें जो है वो फेल है। ठीक है, देखना फेल है, गुड। अब आप मुझे बताएं आपका यहाँ फाइल कैसा आ रहा है? इसमें फाइल जाहिर आ रहा है। गुड गर्ल, वेरी गुड। अब जब फाइल जाहिर आया और आपके पास यहाँ पर मुजक्कर और मोनस दोनों आ रहे हैं, तो आप कौन सा सीगा लेकर आएंगे हादिया? मुजक्कर का। ठीक है, वेरी गुड। तो अब मैं आपको रूट लेटर देती हूँ और वजन देती हूँ, ठीक है, पढ़िए। क्या पढ़ते हैं? नून रा रा, ठीक है, नून द्वा रा या फलू के वजन पर पहला सीगा बनाइए। शाबाश, यंजुरू। आपका सीगा तैयार हो गया, ठीक है। अब इस पर लामे ताकीद और नून थकीला लगाइए, नून शद्दत लगाइए। ला यंजुरन्ना। एक्सीलेंट। अब फाइल लगाएं। ला यंजुरन्ना फातिमा तो जैदुन व मरियमु। मफूल शेर को कहते शेर हैं को क्या कहते हैं? असद, असदुन। असद, असदुन। मफूल की अरबी ला हालत रखने आपने, ठीक है। क्या होता है मफूल की अरबी हालत? असदन ला यंजुरन्ना। वेरी गुड। आप पढ़िए, मैं आपको पूरा सेंटेंस दे रही हूँ, पढ़िए। ला यंजुरन्ना फातिमा तो व जैदुन व मरियमु असदन। गुड, समझ आ गई बात? जी उस्ताद। गुड, आप नून खफीफा से बना दीजिए। ला यंजुरन ला यंजुरन्नी जुरन्नी फातिमा, ला यंजुरन फातिमा तो व जैदुन व मरियमु असदन। ला यंजुरन, पूरा पढ़िए अब एक दफा। ला यंजुरन फातिमा तो व जैदुन व मरियमु असदन। अब देखें यहाँ पे आपके पास फाइल जाहिर था, ठीक है, ना ही वो दूसरी बात ये कि आपके पास आगे मौरिफ बिल नाम इसम नहीं था, तो आपको उन्होंने खलीफा को मिलाने की जरूरत पेश नहीं आई, ठीक है, तो आपका वैसे ही चलेगा। और फाइल जाहिर आया तो गर्दान का पहला सीगा हम लेकर आएंगे, ठीक है। मुजक्कर होगा तो पहला, मोनस होगा तो चौथा। अब क्योंकि यहाँ हमारे पास दोनों जेंडर्स आ रही थी, तो फिर क्योंकि मुजक्कर डोमिनेंट होता है तो हम उसका सीगा लें। वेरी गुड हादिया, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकी। आगे आ जाइए अजरा। जी अजरा। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जुमला पढ़िए अजरा जी। हम जरूर मस्जिद की तरफ जाएंगे। जी,
फेल फाइल मफूल बताइए, इसमें फाइल क्या आ रहा है? हम फाइल है ठीक है। और जाना जाएंगे फेल है, मस्जिद की तरफ मुतालिक फेल है। शाबाश, क्योंकि हमें जो है यहाँ पर ये की तरफ मिल रहा है, ठीक है, और जो जाना है वो लाजिम फेल में आ रहा है इसको, ठीक है। चलें, रूट लेटर है आपके पास, दाल हा बा, या फालू के वजन में पहला सीगा बना दीजिए अजरा जी। यज़हबु, यज़हबु। अब लामे ताकीद और नून मुशद्दद एंटर कीजिए। ला यज़हबन्ना, ला यज़हबन्ना। अब आपके पास फाइल क्या आ रहा है? हम, तो कौन सा सीगा लेकर आएंगी? हम हाँ, बजी अफलू वाला लेकर आएंगे। हम। 14वां आखिरी सीगा। मुतकल्लिम वाहिद का है ना बजी? नहीं, हम है ना, आप अपने वाला हम ना समझे कि हम जैसे हम अकेले को भी हम कहते हैं, ये वो नहनु वाला हम है, ठीक है। अच्छा, मैं नहानो वाला, जी अजी हाँ, नफालू मैं वाला वाला है हम नहीं है ये नहनु वाला हम है। चले कीजिए, आप बनाइए सीगा। ला नज़हबन्ना, एक्सीलेंट। और मस्जिद की तरफ के लिए क्या हम लिखेंगे हम? इला मस्जिदी, हम्म, चले पढ़िए। ला नज़हबन्ना इला मस्जिदी, इलल मस्जिद मिलाकर पढ़ेंगे ना। इला मस्जिदी। जी, गुड। आप नून मुशद्दद की जगह नून खफीफा ले आए, तो कैसे पढ़ेंगी? ला नज़हबन हम्म, इलल मस्जिदी। शाबाश। अब आप देखें यहाँ पर कि ये कौन सी रो का सीगा आ रहा है अजरा जी? हम, फर्स्ट रो का वेरी गुड। और इसमें अलामत मुजारे क्या है? नून है, जी, तो नून किसके लिए आता है? नहानो के लिए, नहनु के लिए आता है। जमा मुतकल्लिम के लिए। वेरी गुड, बस आपने ये बातें याद रखनी है, ठीक है। और ये हम, मैं वाला हम नहीं था, ये नहनु वाला हम था। बहुत अच्छे, माशाल्लाह से बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। बारकल्लाहु फीकी अजरा जी। आज तहसीन जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। जी तहसीन जी, मैं जरूर हाँ जी जी, मैं है इसमें बैठना जो है ये फेल है, और कुर्सी पर जो है ये मुतल्लिक के फेल है, और मैं जो है ये फाइल है। अच्छा, फाइल को तो बेचारे को आखिर पे ले गई, उसने तो काम करना था सब। और मैंने वो एनएसएस को मिलाना शुरू किया। ठीक है, चले। रूट लेटर मैं आपको दे रही हूँ, जीम लाम सीन या फिलू के वजन पर पहला सीगा बना दीजिए जल्दी से। इसका है यजलिसु। गुड। अब लामे ताकीद और नून मुशद्दद ऐड कीजिए यजलिसु पे। ला यजली ला यजलिसन, हम्म, ये तो जमा करूं। ला कॉन्फिडेंट हो यजलिसन ना, यजलिसन्ना। अब आपके पास जी, फाइल क्या आ रहा है तहसीन जी? इसमें अना है। गुड, अना फाइल आ रहा है, तो अब अना वाला जी सीगा जी, ला यजल ऐसा है आखिरी सीगा यजली ला यजलिसन मुतकल्लिम, वाहिद मुतकल्लिम का बनाइए ना। ला यजलिस वाहिद मुतकल्लिम का पहले चले, कैसे जी, बनाते? उसके अलामत मुजारे क्या आएगी? वाहिद मुतकल्लिम। हमजा आएगी। गुड। अजलिस, हाँ, गुड, बनाइए अब। अजलिसन, हाँ, लामे ताकीद लगाइए ना। ला अजलिसन एक्सीलेंट। अब कुर्सी पर। जी, इलल अलल। नहीं, अलल अलल कुर्सी, कुर्सी 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 जी। कुर्सी कीजिए। अजलिसन अलल कुर्सी कुर्सी। हम्म, इसमें आगे वो या वाला नहीं आएगा वो। जी वो जेर आ जाएगी मेरी सेकंड जगह। अच्छा, अलल कुर्सी जी। जी जी ठीक है। अब जी जी, नून मुशद्दद लग गया, नून खफीफा लगा दीजिए इसकी जगह। ला अजलिसन अलल कुर्सी।
अलल कुर्सी जी, गुड हो गया। आई होप कि आपने जो है पॉइंट्स जो है वो समझ लिए। मुझे थोड़ा सा देर में आए हैं लेकिन कोई नहीं, निकल इंशाल्लाह जाते हैं मेरा। सब हाँ जी आसान हो जाता है तहसीन जी। ये प्रैक्टिस जी इसीलिए जी, करवाई इसीलिए मैं हाँ जी बार बार कोशिश इसलिए करती हूँ कि मैं बोलूँ, ताकि गलत भी बोलूंगी तो जाती कुछ थोड़ा ठीक हो है। जाएगा। कोई बात नहीं, आप गलत बोलेंगी ना, हाँ जी इससे आप सीखेंगी, अपनी गलती याद रहती है जी जब जी करेक्शन कर देता है। इसीलिए हम एक्टिविटीज में भी कहते हैं कि एक्टिविटी जरूर कीजिए। बारकल्लाह जी फीकी। जी यास्मीन जी आ जाइए। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, तू जरूर, यानी मुजक्कर की बात हो रही, तू जरूर मस्जिद से लौटेगा। फाइल फेल मफूल बता दीजिए। ओके, तू जो है ये हो गया फाइल, लौटना हो गया फेल, मस्जिद से मुतालिक के फेल। वेरी गुड। ओके, अब लौटने के लिए रूट लेटर में रही हूँ, रा जीम आइन या फिलू के वजन पर जी, पहला फिगा बना दीजिए। यरजिउ। यरजिउ। ओके, अब आप मुझे बना दीजिए इस पे लामे ताकीद और नून मुशद्दद लगाइए। लयर, ओके, लयर जी अन्ना, लयर जी इन्ना। देखिए तू, नहीं अब नहीं, सॉरी, मैं पहले सीखे की आपके साथ बात कर रही हूँ, ठीक है। यरजिउ, ठीक है। तो अब बस पे लामे ताकीद और नून मुशद्दद लगा दीजिए। लयर जी अन्ना। गुड, ला यरजी अन्ना। अब तू का सीगा बना दीजिए। तू मुजक्कर, यानी हमारा सीगा बनेगा ओके, वाहिद मुजक्कर तास। मुतअद्दिद का, ठीक है, जिसमें अंता जी जी, बनाइए। लतर जिन्ना, गुड। अब आगे लगाइए मस्जिद से। लतर जिन्ना मिनल मस्जिद। न तरजी इन्ना नहीं करेंगे ना, अंता फाइल आ रहा है ना, ये किस रो में से आएगा, तो पहली में से, ठीक है। यास्मीन आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही। जी, कीजिए, देखिए, पढ़िए इसको। लतर जी अन्ना मिनल मस्जिद। आपके सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं, दोबारा पढ़िए एक दफा। लतर जी अन्ना मिनल मस्जिद। गुड, ठीक है। अगर जी, आइन से पहले जेर आ जाएगी, और सॉरी नून मुशद्दद से पहले जेर मिलेगी, तो कौन सा सीगा बन जाएगा? वो मोनस का, मतलब हाजिर का। ठीक है, कौन सा फाइल जमीर उसमें होगा? अंती। अंती, ठीक है। तो वो अंती के लिए है जेर जो आएगी नून मुशद्दद से पहले। अब नून खफीफा बना दीजिए, इसको लगा दीजिए नून खफीफा के साथ। लत लत ओके, लतर जिअन मिनल मस्जिदी। गुड हो गया, वेरी गुड, ठीक है। बारकल्लाह फीकी, वेरी गुड यास्मीन। आ जाइए शहनाज। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम। तुम सब मुजक्कर जरूर घर लौटोगे, कीजिए। तुम फाइल हो गया, हम्म, लौटो, नहीं, तुम फाइल, हाँ सही, लौटोगे फेल, हम्म, और घर से मुतालिक हो गया। ठीक है। ओके, घर से मुताबिक आप लौटने के लिए, अभी मैंने उन्हें फेल बताया था, रा जीम आइन या फिलू के वजन में पहला सीगा बना दीजिए शहना। यरजिउ। यरजिओ, गुड हो गया। अब इस पर लामे ताकीद और नून सकीला दाखिल कीजिए। लयरजी अन्ना, एक्सीलेंट। नहीं जमा है ना। एक मिनट। अच्छा अभी इसको बना रहे हैं, ठीक ठीक है, हाँ। है, अब अपना जो हमारा जुमले में फाइल है ना, उसके हिसाब से बनाइए, कौन सा सीगा बनाएंगे? जी, लयरज उन्ना, हाँ, नहीं तुम आएगा अब था। तुम आ रहा है ना, उसको देखिए बस। हाँ, हाँ हाँ, लेटर जे उन्ना, गुड, अ, वेरी गुड। अब घर से। घर से, हम्म, से फिल बैठी, नहीं मैं थोड़ी है, और नहीं से से। मिनल बैठी। गुड, ठीक है, पढ़िए एक बार।
लतरजिउन्ना मिनल बैती। ठीक है, अब यहाँ आपने ये बात याद रखनी है कि देखिए नून मुशद्दद से पहले आपको पेश मिल रही है, तो आपने देखना है कि जमा का सीगा है। अब ये मुज़क्कर गायब का है या मुज़क्कर हाजिर का, तो ये आपको अलामत मुज़ारे बता देगी। ठीक है, ठीक है शहला। जी जी मैम। ओके, अब आप नून खफीफा लगा दीजिए फेल में। लतरजिउन मिनल बैती। वेरी गुड, ठीक है, चलिए बारकल्लाहु फीकी। एक और कर दीजिए जरा, शहला जी। जी जी मैम। जी जी, चले आयशा जरूर घर में दाखिल होगी। फाइल। आयशा फाइल हम्म और दाखिल होना फेल और हम्म घर में मुतालिक के फेल। गुड, चलें दाखिल होना दाल खा लाम या दख वजन पर। ठीक है, बनाइए पहला सा यदखुलु। या दुखुलू। अब लामे ताकीद और नून सकीला लगा दीजिए। लयदखुलन्ना एक्सीलेंट। मिनल बैती। अब फिर अब तो मैं आ गया घर में। जैसे घर में फी, अच्छा इसमें गड़बड़ हो जा रहा है। हाँ, कोई बात। फिल बैती। गुड, पढ़िए। और फाइल तो लगाया नहीं। जी जी। कीजिए अब। लतदखुलन्ना आयशतु फिल बैती। वेरी गुड। अब देखें हमारे पास फाइल जाहिर था ना और मुजक्कर था, तो हम गर्दान का चौथा सीगा लेकर आए। ठीक है, जी ठीक है। अब इसको नून मुशद्दद की जगह नून खफीफा ले आइए। जी। लतदखुलन हम्म आयशतु फिल बैती। गुड हो गया, चलो वेरी गुड, बारकल्लाहु फीकी। आज हमने क्या सीखा? वही है। आज हमने फेले मुजारे में ताकीदी असलूब सीखा। जिस तरह हमने जुमला इस्मिया में ताकीद पैदा करना सीखा था, जिस तरह हमने फेले माजी में ताकीद पैदा करना सीखा था, आज हमने फेल मुजारे में ताकीद सीखी है। फेल मुजारे में ताकीद लाने के लिए कभी कभी कद का इस्तेमाल भी होता है, और फेल मुजारे में ताकीदी असलूब पैदा करने के लिए दूसरा तरीका ये है कि उसमें नून खफीफा और नून सकीला दाखिल किया जाए और उसके साथ लामे ताकीद उसके शुरू में लाया जाए, तो फेल मुजारे में ताकीद पैदा की जाती है। यहाँ याद रखने की बात यह है कि हम कद के साथ फेल मुजारे का तर्जुमा जो है वो हम हाल में करेंगे, प्रेजेंट में। ठीक है, जबकि हम जब नून सकीला और नून खफीफा के साथ फेल मुजारे का तर्जुमा करेंगे तो हम मुस्तकबिल में करेंगे उनकी ट्रांसलेशन। ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी हम क्लास प्रैक्टिस में करेंगे इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।